scandalous, insulting, anti-national, unconstitutional. This is how West Bengal CM Mamata Banerjee described Delhi police's reference to Bengali as Bangladeshi language. The Delhi police's reference came in a correspondence after the arrest of 8 suspected Bangladeshi nationals in the capital. The letter was written by the investigation officer Amit Dutt of the Lodi Colony police station requesting an official translator to verify documents seized from the arrested. These documents include copies of national ID cards, birth certificates, bank account details, etc. CM Mamata urged everyone to protest against the anti-Bengali government of India for degrading Bengali, the language of crores of Indians sanctified and recognized by the Constitution of India, and the language in which our national anthem and the national song were written. Tamil Nadu Chief Minister Stalin on Monday called the behavior of the Delhi police, which falls under the Home Ministry, a direct insult to Bengali and an assault on non-Hindi languages at large. Expressing solidarity with Mamata, Stalin said the episode exposed a dark mindset of a regime that consistently undermines diversity and weaponizes identity. A nationwide verification exercise under Operation Sindoor has been ongoing since May 7 with a crackdown on the alleged Bangladeshi nationals. The verification extended across states such as Gujarat, Delhi, Haryana, Assam, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh and Goa. However, the nationwide exercise came under scrutiny for its scale and the method of deportation as per a Citizens for Justice and Peace report. The CJP report said over 2,000 Bengali-speaking migrants have been covertly deported, with the exercising going as far back as January. However, the procedural lapses, including formal orders, access to legal aid, and verification by foreigners tribunals or equivalent mechanisms remain a major concern. तो अब जो बंगालियों पे ये कर रहा है सारा देश में क्या कर रहा है, जो गरीब माइग्रेंट वर्कर्स है, बंगाल में 22 लाख लोग बाहर काम करते हैं, हमारे स्टेट में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग दूसरे स्टेट से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं। तो हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में दूसरा 2 मई 2025 से एक सीक्रेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कि किसी को भी आप उठा के 30 दिन का इलीगल डिटेंशन में रख सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या शुरू किया, पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा में 400-500 लोगों को उठा रहे और बोलिए आप बांग्लादेशी है, अभी आप प्रूव कीजिए कि आप बांग्लादेशी नहीं है। तो कोई गरीब आदमी जो काम करने गया है, कहीं मिस्त्री का काम कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके पास क्या है, उसके पास बैंक का डॉक्यूमेंट है, उसके पास आधार है, एपिक है, ये तीनों दिखा के बोल रहे थे ये देखिए ये मेरा घर है। तो एसओपी क्या है, एसओपी है कि पुलिस उनका होम स्टेट का पुलिस को कांटेक्ट करे कि वेरिफिकेशन करके कीजिए, नहीं कर रहे। बीजेपी रूल स्टेट्स इनको लेके इलीगल डिटेंशन सेंटर में लॉकअप कर रहे हैं, 7 दिन 8 दिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रहा है, किसी को पता भी नहीं है, उनके परिवार को 2-3 दिन के बाद पता लग रहा है। गुड़गांव में क्या करे, जो भी बंगाली बोलते हैं, अब गुड़गांव में कौन रहते हैं, गुड़गांव में जो रहते हैं वो तो ओरिजिनल गुड़गांव में तो कोई नहीं रहता है, जो वहां पे रहते थे, जमीन का दाम जब बढ़ गया सब अपने तो गुड़गांव का जमीन बेच के बड़े बड़े गाड़ी खरीद लिए। अब गुड़गांव में कौन रहता है, गुड़गांव में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं वो कर्नाटक के इंजीनियर रहते हैं, हैदराबाद के इंजीनियर रहते हैं, वो भी तो सब माइग्रेंट है, गरीब नहीं है पर माइग्रेंट तो वही है, वो तो बाहर के लोग हैं ना। उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो उनके घर में खाना बनाता है, जो उनके बच्चों को देखता है, जो घर पे नर्स के काम करती है, जो सफाई का काम करते हैं, जिसके पास वो भी माइग्रेंट है पर वहां पे उनका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको जाके पकड़ के सेक्टर 10A में कम्युनिटी सेंटर में डिटेंशन सेंटर बना दिया, सेक्टर 24 में डिटेंशन सेंटर बना दिया। वो लोग एकदम पैनिक्ड है। आप देखिए अजीत अंजुम ने गए थे, बहुत सारे आपके दोस्त भी वहां पे गए हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और देख सकते हैं बिलकुमारी बाड़ी को था, बिलकुमारी पंचायत, बाड़ी को था छोटो नौलदा, बाड़ी को था मालदा, ये तो बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट है। 19 साल का कोई कालिया चौक मालदा का लड़का को लेके कोई जेसीबी देके ऊपर फेंक दिया बांग्लादेश में, जो हम लोग ले आए। तो दिस इज नथिंग बट द वर्स्ट काइंड ऑफ परसिक्यूशन जो हिटलर का जर्मनी में होता था कि लोग जूस घर से बाहर निकलने में डरते थे कि पकड़ के ले ना जाए। अब गुरुग्राम में जो बंगाली रहते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, वो डर के मारे घर से बाहर नहीं जा रहे कि कोई उठा ना ले।